now we have discussed about mean or the arithmetic means regarding the discrete frequency distribution. Okay, in the previous videos we have discussed various methods of means like direct method, shortcut method or step deviation methods. So those methods belongs to the discrete value distribution. Okay, discrete frequency distribution. Discrete means we have put randomly some values like 5. So how many times 5 occurs in our trial or in our program? So we count it as a frequency. Like 5 occurs 7 times. So the 5 will be the variable and the 7 times that will be the frequency. So that was the scenario regarding the discrete value distribution. Now we will discuss the distribution regarding continuous frequency distribution. In that we will be given a class interval, like just take example like in your class the teacher distribute the marks. Okay, so he will now when he collecting the marks, so he will just ask you that how many students have scored less than 10 marks. So some of will raise their hands. So he will count like 7 scored less than 10 marks. So he will put those marks in the category 0 to 10 marks category. So 0 to 10, or like in this question the class is 0 to 20. So in 0 to 20, let's say the number of students who scored 0 to 20 marks are 15. Okay. In that there may be some score may be like 10, 11, 15, 17, all those. Okay. Now the next category will be 20 to 40. Okay. In this way you will categorize all the scores. Okay. So this is called the continuous frequency distribution. Okay. In that ये क्या हो रहा है आपका कि एक सीरीज चल रहा है. It is a series kind of thing. ठीक है. So this is known as the continuous frequency distribution. So the basic difference is discrete means you have selected some random values. That is the discrete. Continuous means you have categorized them. Now you are doing your study. Okay. So this is the basic difference between discrete and continuous value distribution. So till now we have applied all the methods like direct method, shortcut method or step deviation method on a discrete value distributions. Okay. Now we will apply all those methods in continuous value, the continuous frequency distribution. Okay. You can apply any of those three methods. It is not mandatory that you have to apply the direct method or step deviation or the shortcut method. Okay. It's up to you which method is feasible or which method is convenient for you. You just apply that method. Okay. Okay. We'll start with our this chapter. The arithmetic mean of a continuous frequency distribution. So the procedure will be as we have already discussed. वही procedure होगा आपका, ठीक है? But the basic difference इसमें क्या रहेगा आपका? The class interval like this 0 to 20. So you have to find out the variable first. So it is the class. So how to find the variable? For that I have mentioned one formula here. Mid value over the class marks. ठीक है? It is known as the mid value or a class marks. ठीक है? So it is mentioned that 0 to 20. ठीक है? Just focus here. 0 to 20. This is your class. This whole is known as a class. Okay? And this value is known as a lower limit. This is known as a lower limit. This is known as a upper limit. Okay? Lower, upper. Now the mid value or the class marks will be half times the sum of these two values. Lower limit plus upper limit. That will give you the mid value. Okay? And that mid value will be treated as a variable in this case. ठीक है? वो आपका क्या बन जाएगा? तो mid value आएगा वो discrete value type में बन जाएगा. So what we are trying to do, we are just trying to convert the continuous frequency distribution into discrete frequency distribution. ठीक है? ये अपना approach रहेगा. Other procedure will be same like we have discussed or we have, ठीक है ना? उस टाइप से रहेगा आपका जो अपने पहले स्टडी कर चुका है वैसे ही रहेगा. So
लेट्स ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका, क्लास मार्क्स रहेगा, दैट विल बी द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो क्लास आप ऐसे लिखो, ठीक है, दिस विल बी द क्लास, ठीक है। सो लेट मी मेंशन इट विद द अदर क्लास। क्लास ये आपका एक कॉलम रहेगा, देन द नेक्स्ट कॉलम विल बी मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू। This will be treated as a variable xi, okay. The next column will be frequency fi, ठीक है। सो आपका जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है वो आपका क्लास आ रहा है, ठीक है। क्लास आपको मेंशन करनी है, देन यू हैव टू फाइंड द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फाइंड आउट करते ही यहां से आपका वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा जो किसमें था, डिस्क्रीट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन में था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में था, वो ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट बनाते हैं। ये आपका पहला इंटरवल गिवन है, लेट्स से ये हो गया आपका 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। इस तरीके से आपका है। मिड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। मिड वैल्यू क्या है, हाफ टाइम्स दोनों का सम, 0 plus 20 will become 20, 20 by 2 will become 10। सो जो आपका वैल्यू आएगा वो 10 आएगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 20, 40, 60, 60 by 2 30। अब देखो बेसिकली आप पहला वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अब आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि हर एक इंटरवल क्या रहेगा, 20 के डिफरेंस पे देखो, 0 to 20, 20, 20, 20 और 20, सब में डिफरेंस कितना है 20, वो आप ऐड करते रहो। 10 plus 20 30, 30 plus 70 50, ये 70 और ये 90, ठीक है। कुछ टाइम से हो सकता है आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। फ्रीक्वेंसी वो आपकी मेंशन है ऑलरेडी, 15, 18, 21, 29 एंड 17, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहां तक आपका हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वेदर यू आर फॉलोइंग द डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप फॉलो कीजिए। जैसे इस पे आप स्टडी करो तो आप मल्टीप्लाई करने जाओगे, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एफ आई एक्स आई का मल्टीपल रखते हो, वो आपका नेक्स्ट कॉलम आता है, ठीक है। तो फिर क्या करते हो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, इन सब का सम। ये तो अपने को अल्टीमेटली जरूरत पड़ने ही वाली है, तो समेशन ऑफ एफ आई मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। देन समेशन ऑफ एफ आई क्या रहेगा आपका, दिस विल बिकम 20 और 13, 33, दिस विल बिकम 50, 40, 90 और 10 100, ठीक है। तो ये आपका कितना है 100, समेशन ऑफ एफ आई की आपका 100। अब आपके ऊपर रहेगा कि इधर यू मल्टीप्लाई दिस, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा, वो आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट मेथड से रहेगा। तो मैं लिख देता हूं, अगर आपको डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना रहेगा so you need to find out FIXI, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। तो क्या रहेगा FIXI, जस्ट मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है। कितना कितना रहेगा 150, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 105, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और 7 0, ठीक है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा 170, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, सो 17 रिड्यूस कर दो 153, ये रहेगा आपका, ठीक है। अब आपको इसका सम फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना रहेगा आपका 0, दिस विल बिकम 3, 3, 6, 11, 15 और 19, 5, 10 और 11 और एक वो आपका 12 है, 3, 4, ठीक है, और 5290, ठीक है। ये आपका आ गया यहां तक का 5290। होपफुली यहां तक अपना कैलकुलेशन ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका 150, ठीक है, ठीक है,
0, ठीक है, 20, ठीक है, देन दिस विल बिकम 0, ठीक है, एडिशन विल बी फर्स्ट प्लेस 0, 3 3 6 10, ओके, ये 20, ओके, ये आपका 20 बनेगा, ओके, यहाँ पे अपना मिस्टेक है 20, सो दिस विल बिकम सम अदर वैल्यू, ठीक है, ये कितना बनेगा, विल फाइंड इट आउट, 5 5 10 11 एंड 2 13, ठीक है, हाँ, तो 5300। नाउ अगर आपको डायरेक्ट मेथड से आपको बनाना है इस क्वेश्चन को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट मेथड। क्या करोगे डायरेक्ट मेथड में, x बार कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, तो कितना रहेगा, समेशन ऑफ fi 5300 बाय 100, आंसर विल बी 53, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। इसी तरीके से आप बाकी से बना भी सकते हो इस ट्रिक को, ठीक है, कोई एक मेथड फॉलो कर लेना आप लोग, ठीक है, जैसे मान के चलो आपको इसको बनाना होता स्टेप डेविएशन से, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपन शॉर्टकट को निकालते हैं, शॉर्टकट में क्या रहेगा आपका di रहता है ना, तो di ये आपका यहाँ पे रहेगा, तो di क्या होता है कि इसमें से जो आपका वैल्यू है उसमें से कोई एक आप ही निकाल लो, वो क्या रहेगा आपका xi माइनस a रहता है, ठीक है, तो अब आपको मेंशन करना रहेगा कि a आपका क्या है यहाँ पे, सो ये आप मेंशन करोगे, a आपका क्या रहेगा, इसमें से एक ऐसा नंबर चूज कर लो जो सबसे क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, है ना, ट्राई करते हैं कि अपन मिड वाला वैल्यू भी लें, ठीक है, ताकि अपना जो प्लस माइनस है वो बैलेंस में आए, ठीक है, तो आई थिंक 50 सही रहेगा अपने लिए, सो अगर 50 ले लेते हो आप, तो आपका देखो क्या क्या बन जाएगा, ये कॉलम कितना बनेगा, 50 10, तो 10 माइनस 50 माइनस में 40 माइनस 20 0 20 और 40, ये आपका डी आई आ गया। अब आपका नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, इसके लिए एफ आई डी आई होता है ना, क्या होता है, एफ आई डी आई, किसके लिए, शॉर्टकट के लिए, तो एफ आई डी आई क्या रहेगा आपका, वो आपको यहाँ पे लिखना है, एफ आई डी आई क्या रहेगा आपका, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -600, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -360, 0, दिस विल बिकम 2958 एंड दिस विल बिकम 680। अब आपको क्या करना रहेगा, शॉर्टकट में आपको फाइंड आउट करना होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना रहेगा आपका, दैट विल बिकम 600 300 900 900 आपको यहां से हटा दो, तो ये बन जाएगा 6 5 11 11 1200 और 80 80 60, है ना, तो 1360 बन रहा है, और ये आपका बन रहा है 960, सो 1300 और 960 में आपका क्या रहेगा, प्लस का 400 रह जाएगा, ठीक है, प्लस का 400 रह जाएगा, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना रहता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यहां पे मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ये रिमूव हो गया, तो क्या रहता है आपका शॉर्टकट में, ये इक्वेशन मैं आपको पूरा बता रहा हूं हर एक मेथड से, बाकी आप शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना रहेगा, बाकी अपने इक्वेशन इजी ही है। शॉर्टकट मेथड में आप एक्स बार कैसे फाइंड आउट करते हो, जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट किया आपने, a को सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो क्या होता है आपका ऐड होता है, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। फिर क्या रहता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर दो बस, तो आपका क्या क्या आ जाएगा, यहां से यही पुट कर देते हैं, a का वैल्यू कितना है 50 है, समेशन ऑफ एफ आई का क्या है 400 बाई 100, कितना आ गया आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आएगा, 54 लास्ट में 53, दैट मींस अपना कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है, लेट मी चेक, ट्वेंटी हो गया, ठीक है, यहां तक ठीक है अपना, देन मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, ठीक है, 0 रहेगा, 58 रहेगा, ठीक है, एंड दिस विल बिकम
68, ठीक है। 6 5 11, ओके, ये 1260 था आपका, ठीक है। देन इट विल बिकम 300, दिस विल बिकम 300, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 300। अब देखो क्या रहेगा, कैंसल आउट हो गया, क्या रहेगा 53। डायरेक्ट मेथड से भी 53, शॉर्टकट मेथड से भी 53, ठीक है। अब मैं आपको एक और जो मेथड बच गया उससे भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया। उसमें आपका क्या रहता है, एक और कॉलम आ जाता है, कौन सा, म्यू आई का, ठीक है। वो आपका क्या होता है, ये जो xi माइनस a है उसको किसी एक नंबर से अपन डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो नंबर क्या रहता है, इसको ऑब्जर्व करो, ये किससे डिविजिबल है, जिनमें कॉमन डिविजिबल है इनमें कौन सा है, वो आपका दिखेगा 20। तो आपका जो h का वैल्यू है वो कितना रहेगा, 20 रहेगा इस केस में, ठीक है ना। तो वो बना दो, 20 आके देखो क्या आएगा, -2 आएगा, -1 0 1 और 2 आ गया। ये हो गया आपका म्यू आई का। अब नेक्स्ट कॉलम क्या होता है आपका, fi म्यू आई होता है, ठीक है। क्या होता है, fi म्यू आई, ठीक है। तो वो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, fi म्यू आई, ये आपका लास्ट कॉलम रहेगा। इसके मल्टीपल में क्या रहेगा, देखो अभी किस किस का मल्टीप्लाई करने वाले हो, इसका और इसका, तो 5 ये हो जाएगा आपका -30, इस बार कैलकुलेशन सही करेंगे हर हाल में, -18 0, दिस विल बिकम 29 एंड दिस विल बिकम 34। तो आप देख रहे हो थोड़ी कैलकुलेशन अपनी क्या हो रही है, इजी हो रही है। जैसे ये वाली कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी इजी हो जाती है, स्टेप आपको दिख रहा है कि एक अक्षर जा रहा है, बट वो स्टेप आपकी कैलकुलेशन में काफी टाइम बचा देगा। यहां से आपका जो सम आएगा वो लिखो आप, तो समेशन ऑफ fi म्यू आई कितना रहेगा आपका, आपको जस्ट ऐड करना है। ये बन गया आपका 48, जैसे यहीं पे हटा दो, ये 34 है तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4, ठीक है, +4 आ गया, 18 और 29, यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपका 11 का, 11 प्लस का डिफरेंस +4 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, इसमें क्या रहता है आपका, यही रहता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, और ये स्टेप डेविएशन हो गया आपका, स्टेप डेविएशन, ठीक है। क्या रहेगा यहाँ पे, ए रहता है ये आपका, जो हटाया है वो ऐड रहेगा, उसमें आपने क्या किया, डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, मल्टीपल में आएगा क्या, h, और यहाँ पे क्या आएगा, fi di नहीं होगा, इस बार म्यू आई हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि आपको डिफरेंस बताना कि कैसे कैसे क्या रहेगा। 50 रहेगा, यहाँ पे आपका डिफरेंस हो जाएगा, क्या रहेगा देखो, 50 h का वैल्यू कितना आपका 20, ये कितना है fi म्यू 15 है, तो 15 बाई कितना रहेगा 100। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 20 दैट विल बिकम 300, 300 बाई 100 3, तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा, 50 प्लस 3 53। इस बार अपना क्या हो गया, पहली बार में ही सही हो गया, अपना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ही नहीं रहा। तो ये आपका तरीका है तीनों मेथड से बनाने का। तो कंटिन्यूअस मेथड में आपको क्या करना है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है क्लास गिवन होगी आपको, वहां से मिड वैल्यू पे पहुंचना है बस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर सीबीएसई के द्वारा पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन ही मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका क्या है, इंटरवल सेम है, जहां डिफरेंस रहेगा मिड वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक ही स्टेप आपका अलग है, क्लास लिखो, मिड वैल्यू निकाल दो उसका, ठीक है। ये आपने निकाल रखा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तो लकीली सारे ही देखो सभी में क्या रखा मैंने, सेम ही रख दिया उसको, ठीक है, ये लकीली आ गया। बट आपको करना क्या है, क्लास मार्क्स को और मिड वैल्यू को ऐसे निकालना, ठीक है। ये एक अच्छा स्टेप है आपका, बाकी यहाँ से आगे का पूरा प्रोसीजर किसका है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही है, ठीक है। तो ये मेरे को इरेज करना है बस, दैट्स इट। तो इसका लिखते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, 7, अब टाइम नहीं लगेगा अपने को, ठीक है। यहां तक मेरे को एक बार समझाना था आप लोगों को, इसलिए टाइम लग गया, अब जल्दी जल्दी बना देंगे और अब एक ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए स्टेप डेविएशन फॉलो कर लेंगे, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी बन जाएंगे सारे। तो समेशन ऑफ fi कितना रहेगा नहीं पता, तो यहां लिखना पड़ेगा, किसके इक्वल आएगा, देखो ये बन गया 20, ये बन गया 30, 39 प्लस p, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 39 प्लस p, ये आपका क्या रहेगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा। इसकी कहां पे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो एफ आई एक्स आई ये कॉलम हटाई दो, ठीक है, ये अपना कोई यूज का नहीं है, तो इसको मैं नहीं लेने वाला, ठीक है। डी आई इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये कितना रहेगा आपका, आपने क्या किया यहाँ पे ए लिया है तो 50 आ गया आपका, तो ये अपना सेम रहेगा, ये कॉलम अपना सेम रहेगा, ठीक है, तो इसको हटा देता हूं बस, क्यों, मेरे को ये अप्लाई करना है ना, तो ये कॉलम आपका क्या हो गया अभी हटेगा, ठीक है, ये हटा दिया, ठीक है। फिर एफ आई डी आई, एफ आई डी आई की जरूरत पड़ेगी क्या अपने को, इस बार नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपने को उसमें शॉर्टकट में जरूरत पड़ती है, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, ये आपका हट गया। तो नेक्स्ट क्या रहेगा आपका म्यू आई, ठीक है, तो ये आप अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे, इन दो को अपन फिर से बना ही देते हैं, ठीक है, ताकि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या रहे, दिक्कतें ना हो जाए। तो ये वाला क्या रहेगा आपका म्यू आई का कॉलम रहेगा, वो आपका क्या रहेगा डी आई अपॉन एच, और एच क्या रहेगा आपका इस केस में, किससे डिविजिबल है ये, एच आपका 20 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये आपको हो गया, और एक कॉलम आपका और बनेगा दैट इज एफ आई म्यू आई, ठीक है, ये आपका अलग से हो गया। चलिए अब फटाफट वैल्यू लिखते हैं, दिया आ गया h 20 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा -2 -1 0 1 2, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो एफ आई से, कितना आएगा -40 -p 0, this will become 9 and this will become 26, समेशन एफ आई म्यू आई कितना आएगा 26, ठीक है, और यहाँ 14 हटा दोगे, देखो 9 और 14 that will become -5 plus 26 will become 21 plus 21 minus p, 21 minus p, ये आपका आ गया अल्टीमेट इसका। अब इसमें से किसकी जरूरत पड़ रही है उसकी वैल्यू रख देते हैं, अपने को गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे आपका मीन गिवन है, ये रहा मीन कितना है 54, तो ये आपको यहाँ पे रखना है, तो फटाफट बनाते हैं, देखो इसको क्या कैसे करना है, 54 आप रखोगे, a का वैल्यू कितना है 50 है, प्लस h का वैल्यू 20 है, समेशन ऑफ एफ आई म्यू आई 21 माइनस p है, तो 21 माइनस p अपॉन p, आपका एफ आई क्या आएगा 39 प्लस p आएगा, तो 39 प्लस p, इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, तो कुछ स्टेप्स में गायब करने वाला हूं, ठीक है, h यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम लिख रहा है, क्या रहेगा इधर आएगा तो 4 बनेगा, ठीक है, 4 इक्वल्स टू, ये लिख देता हूं 4 इक्वल्स टू 20 टाइम्स 21 माइनस पी अपॉन 39 प्लस पी, ठीक है। अब देखो 4 से ये कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये वाला इधर आ जाएगा 39 प्लस पी, तो ये आपका आएगा 39 प्लस पी इक्वल्स टू, ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 105 माइनस 5p, ये आपका बन जाएगा। अब 5p को आप इधर लेके आओगे, दिस विल बिकम 6p इक्वल्स टू 105 से आप हटा दे रहे हो, ठीक है, उसको उधर ट्रांसफर करोगे तो वो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आके क्या बनेगा आपका, अगर 40 हटाते हैं तो आप 65 आता है ना, बट एक कम रहता है, 65 में एक ऐड कर दो 66 बन जाएगा आपका, तो p का वैल्यू कितना बन जाएगा आपका 11, तो आपका आंसर क्या हो गया 11। किस मेथड से बनाया मैंने, स्टेप डेविएशन से, आप बना सकते हो उसको डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी, सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूँ, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है, उसमें भी देखो क्या दे रखा आपको, फिर से इसमें मीन दे रखा आपको, मीन कितना दिया हुआ है 50 दे रखा है, और क्या दे रखा है, एक और इन्फॉर्मेशन है जो आप हमेशा याद रखना, अगर ऐसे दे रखा हो दैट मींस इसमें क्या दे रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना 120, अपन ना यहाँ पे जो है ना ये आपको दे रखा है उसमें कितना 120, तो याद रखना ये आपका 120 है, तो एक इक्वेशन आपकी बनेगी इससे और दूसरी इक्वेशन बनेगी स्टेप डेविएशन, ये आपका जो मीन दिया हुआ है उससे, ठीक है, दोनों देखते हैं अभी। इस साइड लिख देता हूं मैं आपका ये जो भी आपको दिया हुआ है वो सब चीजें, ठीक है, कितना कितना गिवन है फटाफट लिखते हैं ना, 17 F132 F2 19, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका वही रहेगा बिकॉज ए तो यहां से देखा जाता है ना, इस जगह से, ये तो अपना सेम ही रह रहा है केस में, तो ये यहीं से आएगा, ये यहीं से आएगा, ये भी कहां से आएगा यहीं से,
दैट मीन्स इसी को डिवाइड कर रहा हूँ, फर्क कहाँ पे आएगा इसमें, तो इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका, यहाँ पे भी फैल आएगा, तो डिफरेंस मल्टीप्लाई करोगे -34 -f1 0, ये बन जाएगा f2 और ये बन जाएगा 38। तो देखो 38 34 प्लस 4 माइनस f1 प्लस f2 आएगा, +4 माइनस f1 प्लस f2, ठीक है। ये आपका आ गया, ये कहां पे रखोगे, इसमें रखोगे। x बार कितना दे रखा है 50, तो लिख दो 50 इक्वल्स टू a भी क्या है आपका 50 है, प्लस h कितना है 20 है, और ये क्या रखोगे 4 माइनस f1 प्लस f2 अपॉन 120, ठीक है। अब देखो 50 से 50 कैंसिल आउट, क्या बन गया 0 बन गया, तो मल्टीपल वाला भी 0 में चला गया, 120 भी 0 में चला गया। एक चीज आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा 4 माइनस f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन आप लोगों की कर लेना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, वो आएगा यहां से, बताया था मैंने, ये सम दे रखा आपको 120 किसके इक्वल होगा, अरे भाई जो इसका सम है वही तो 120 होगा, दैट मींस इन सबको ऐड करना है आपको। ऐड करोगे तो देखो क्या रहेगा आपका, ये बन गया 50 प्लस 151 प्लस 17 बन गया 68 प्लस f1 f2, 68 प्लस f1 प्लस f2। तो यहां से बताओ f1 प्लस f2 का वैल्यू कितना आया, 120 से आप 68 हटा दो तो आपको मिल जाएगा 52, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन वो रहा। दोनों इक्वेशन को शफल करके लिख दो यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या क्या रहने वाला आपका, इसको अगर मैं f1 f2 के टर्म में रखूंगा तो क्या आएगा -f1 प्लस f2 इक्वल टू -4। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, -f1 प्लस f2 इक्वल्स टू -4, और इसको नीचे रखता हूँ ऐसे ही, इक्वल्स टू 52। ऐड करोगे तो f1 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 2f2 इक्वल्स टू 56, 2f2 इक्वल्स टू 56। तो बताओ f2 का वैल्यू कितना आ गया 28 आ गया। f2 28 है, तो इसको यहां पे रख दो और यहां से f1 फाइंड आउट कर लो। f1 क्या रहेगा, यहां से f1 आपका रहेगा 28 माइनस 4, कितना आ जाएगा 24। तो ये आपके क्या हो गए आंसर हो 24 एंड 28, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना था, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो बनाने थे, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। तो इस तरीके से अगर आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो आपको आंसर बनाने हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो मीन दे रखा आपको ना, तो वो मीन ऑब्जर्व करो। सेकेंड आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे आपको क्या दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी को जरूर देखना, लास्ट में टोटल लिखा हुआ होता है ना, तो वो जरूर आप लोग देख ही लेना। इस तरीके से आपको क्या करना था, ये फाइंड आउट करना, ठीक है। होपफुली कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ओके, तो ये आपको बनाना था ऐसे, ठीक है ना। होपफुली सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा इस तरीके से, ये तो 120 था आपका, मेन दिया हुआ था, यहाँ से आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना ये इक्वेशन आपकी एक यहाँ से बनेगी, तो वो इक्वेशन बन गई है कि f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 52 आ गया आपका, और यहाँ से एक इक्वेशन आपकी आएगी, ठीक है। वो आपका क्या रहेगा -f1 प्लस f2 इक्वल्स टू -4 वाला रहेगा आपका, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन रखी थी, दोनों को ऐड कर दो आप, 2f2 इक्वल्स टू 56 नहीं है ये आपका क्या रहेगा 52 माइनस 4 विल बिकम 48। तो ये आपका क्या रहेगा 48 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 48 क्या रहेगा, तो ये आपका 24 बन जाएगा, और अगर ये 24 है तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका सब्ट्रैक्ट होगा कुछ और, है ना, -4 है तो ये +4 बनेगा, तो 24 + 4 आएगा इस जगह, दिस विल बिकम 28, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, तो 24 28 इस तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली अभी आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनाने, ठीक है।
कैलकुलेशन का है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, बाकी अपना सब ठीक है। इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाने हैं।